بلر کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ مناسب نہیں لگتا کسی کی آپ جا کے جیل میں جا کے پکچر کریں ویڈیو کریں. جو پہلے کبھی کبھی یہاں پہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ کسی کی تذلیل کرنا, تو میرا مقصد ہوگا کہ آپ پہلے جا کے وہاں پہ اس کو بلر کر کے وہ دیکھ لیجئے گا, اور تاکہ اور آپ قوم کو دکھائیں, پورے پاکستان کو دکھائیں کہ جی سندھ میں کوئی اس طریقے سے خدا نہ خواستہ کا سلوک جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اور میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا میٹر آف کہ صرف یہ افغانی. اور ہر جگہ تو اوور آل میں شروع کروں گا کراچی سے لے کر کشمیر تک کی بات کروں گا. کراچی میں اس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہوتا ہے, وہ ہے. اچھا, اس میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پرزنرز ہیں, ڈیفینیٹلی ایک اور سوال یہ آئے گا کہ پھر اب کیا ہوگا. ان میں سے جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ بچے جتنے بھی ہیں وہ پرزنرز نہیں ہیں, وہ کورٹ کے احکامات پر ان والداؤں کے پاس بچے ہیں. تو 129 ٹوٹل میں نے بتایا کہ جو کہ فیمیل ہیں, اس میں سے جو انڈر ٹرائل ہیں وہ 75 فیمیل ہیں, اور کنوکٹڈ جو ہیں وہ 54 فیمیلز ہیں, اور ان کو عدالتوں نے کنوکشن دیے 2 مہینے کی. ٹھیک ہے, اب ان کی ختم ہو رہی ہے کنوکشن جو ہے وہ جنوری میں. تو جنوری میں جو 54 خواتین ہیں, اور ان کی وہ کاؤنٹ بھی ہوتے ہیں جس دن سے وہ اریسٹڈ ہیں, تو جو 54 خواتین ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بچے ہوں گے ان کو حکومت سندھ وفاقی حکومت کے کہنے پہ ان کو ڈیپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, وہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی سزائیں ہیں اور خدا نہ خدا کسی اذیت میں بیٹھے ہوں, لیکن جو عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی 2 مہینے کی, کسی کو بھی 2 مہینے سے زیادہ کی سزا نہیں ہے, تو 2 مہینے کی سزا ہے. اس کے بعد ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ اپنے ملک جائیں اور جا کے اپنے ملک میں واپس یہ قیام پذیر ہوں. تو یہ ہے پوری چیز کی سٹوری جو آپ کو دینی تھی. اب دوسرا جو ایشو ہے, اس وقت مہنگائی کا ملک میں ایک ڈیفینیٹلی طوفان ہے. دنیا بھر میں مہنگائی, لیکن انفلیشن پاکستان میں زیادہ جو آپ کی فائنینشیل پوزیشن ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا. ڈیفینیٹلی سیٹ ڈومین آف فیڈرل گورنمنٹ, بٹ بسائڈ دس کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت سندھ جو بھی بہتر سے بہتر کر سکتی ہے سندھ میں رہنے والے لوگوں کے لیے, وہ حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے. اور ان کرائسس کے صورتحال کے باوجود اربوں روپے کی سبسڈی دے کر, اور وہ سبسڈی حکومت نے بھری ہے جو کہ عوام کو ڈائریکٹ مل رہی ہے, اور ان لوگوں کو جو کہ زیادہ تر مستحق ہیں یا جو کہ نان افورڈنگ ہیں. آج بھی 65 روپے فی کلو آٹا سندھ بھر میں فراہم کیا جا رہا ہے, مختلف سپاٹس پہ مل رہا ہے. اس کی تشہیر پہلے بھی کی گئی ہے, اور پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو صرف 65 روپے فی کلو آٹا نان اسٹاپ دے رہا ہے. روزانہ 10 کلو کا ایک بیگ ہے آٹے کا, تو روزانہ 5.25 لاکھ خاندانوں کو یہ 65 روپے پر کے جی آٹا گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ دے رہی ہے. 5.25 لاکھ ڈیلی کی بنیاد پہ, اور آپ یہ دے رہے ہیں اکتوبر سے, سپٹمبر 15 کے بعد سے شروع کی یہ سپلائی, اور مارچ تک کی ہماری مارچ 15 تک یہ سپلائی جاری رہے گی. تو یہ 6 مہینے پورے, حالانکہ اس میں مختلف جگہوں پر بہت مہنگا آٹا ہے, لوگ جو ہے وہ مہنگا آٹا بیچ رہے ہیں, اس پہ بھی ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہے. لیکن کیونکہ وہ پھر میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا آٹا, تو آپ گورنمنٹ کے ان اسٹال سے پرچیزنگ کریں. اگر آپ بڑے اسٹورز پہ جائیں گے, فینسی اسٹورز پہ جائیں گے, ایئر کنڈیشن قسم کے اسٹورز پہ جائیں گے, بڑے مالز پہ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہاں کا آٹا مہنگا ہے. لیکن گورنمنٹ آف سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ خصوصی طور پر یہ میک شور کر رہا ہے کہ ڈیلی تنخواہیں اس چیز کی ملتی ہیں کہ آپ نے اس ملک کو قانون کے دائرے میں رکھ کر چلانا ہے. آپ دنیا کے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ اللیگلی جہاں پہ رہ سکو, غیر قانونی طور پہ رہ سکو. اور جہاں تک آپ نے کرائم کی بات کی, اسٹریٹ کرائم کی بات کی, ڈیفینیٹلی اس طرح کے کچھ کیسز آئے ہیں, اور اس کو کیسز کو میرٹ پہ دیکھا جا رہا ہے. کیسز کو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جی کرائم کرنے والا کون ہے. کرائم کرنے والا کسی بھی ملک کا شہری ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, اگر کرمنل ہے تو اس پر کرمنل کے لیے جو قانون بنا ہوا ہے اسی قانون کی طرف سے کام ہوگا.
एक मिनट में, अच्छा जनाब जनाब, अब मैं आपको बता दूं जी, पहली बात ये कि बच्चा कोई भी कन्विक्टेड नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को सजा नहीं हुई है। ये बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो अपनी वालिदैन के साथ आए हुए हैं और फिर उनको अदालत ने, मतलब आप पता कि जेल में किसी को भी बगैर अदालती अहकामात पर नहीं रखा जा सकता, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या वो कन्विक्टेड हो। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये 9 दिसंबर 2022 को ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने विजिट किया। उस विजिट का आपने अच्छा के सवाल पूछा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, उस विजिट में उन्होंने क्या लिखा है। अगर इसको क्लोज अप कर लें या इसकी क्लोज कर लें, मैं स्क्रीन पे राबिया जवेरी जो थी मुझे जी, उन्होंने अच्छा, राबिया जवेरी आगा साहिबा चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। उन्होंने लिखा है excellent facilities and proactive approach to panel to panel क्या लिखा मैं पढ़ना panel forum नहीं, राइटिंग से। फिर एक है सीमा जफर साहिबा, हाँ वो भी उनकी कमेटी में है। उनके विजिट पे उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दी है। मैं इसकी कॉपी देता हूं सबको, मैं आपको अभी जो है इसका व्हाट्सएप भी कर देता हूं आप लोगों को, कि ह्यूमन राइट्स जिसकी बात करें, उन्होंने कहा है कि जी जो प्रिजन है हमारे वुमेन प्रिजन जो हैं, और उसमें जो ये इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज और प्रॉपर फैसिलिटीज दी जा रही है। सर वो इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने पे सवालात उठ रहे हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा नई ऑडियोज आई है सर, वो भी अजीबोगरीब बातें हो रही है, क्या है सर? देखिए जी, मेरे ख्याल से आज हम एक निहायती अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, और उसमें अगर एक पाकिस्तान के फजूल तरीन इंसान, बेवकूफ तरीन इंसान, और एक शख्स जो कि इस मुल्क को डुबोने के चक्कर में है और पूरी कौम उस मुल्क को बचाने के चक्कर में है। आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में आज भी पूरी हमारे मुल्क की इंपॉर्टेंट क़यादत जो है वो अहम इजलास कर रही है कि मुल्क को किस तरह हम अपने ट्रैक पर लेकर आए। और उसी जगह पर वो शख्स आज उसने कोई ऐलान किया कि सारे मुल्क में एहतजाज करो, धरने करो, मतलब वो पागल शख्स है, वो बेवकूफ शख्स है, वो पाकिस्तान का कभी साथी नहीं था, पाकिस्तान का कभी हमदर्द नहीं था, उसको पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। उसके स्टेक्स जो है वो यहूदी, इसराइल और इंडिया से उसके पूरे स्टेक्स उसके चल रहे हैं जो शख्स के, तो उसके कहने पे हम लोग जो है, मैं समझता हूं कि हमें डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इमरान खान का इतनी भी वैल्यू नहीं है जितनी हमारे पास तो पाकिस्तान की वैल्यू है। आपको कौन सी प्लानिंग उसमें प्री नजर नहीं आ रही है इसमें? मतलब बहुत आवाम को मुश्किलात पेश हो रही हैं। देखें, बिल्कुल अब मैं आपको बताऊं जी, देखिए जी, ये प्रोजेक्ट जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन के साथ हुकूमत सिंध चला रही है, जहां पे ट्रैफिक की कंजेशन थी, पहले भी ट्रैफिक के इश्यूज पहले भी थे, और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस प्रोजेक्ट को लेकर जा रही है। मुझे पता है कि अवाम को बहुत तकलीफ है, वहां पे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और ये शायद तकलीफ और ये मुश्किलात का सामना ये 1-2 साल करना पड़े, मैं ये भी बात को एडमिट कर रहा हूं। लेकिन ये 2 साल का जो कॉम्प्रोमाइज होगा वो फिर 100 साल तक जो है ना कराची के अवाम के लिए एक फायदेमंद साबित होगा, सूदमंद साबित होगा। दूसरी बात, जो आज भी मैं किसी टीवी पे रिपोर्ट देख रहा था सुबह को, ये 2 जगहों उस पर काम एट ए टाइम हो रहा है। बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 पोर्शंस में, एक है लॉट 1, एक लॉट 2। हमने ये नहीं करना कि जी पहले एक लॉट पूरा बनेगा तो फिर दूसरे लॉट को काम शुरू करवाना है। हमने दोनों लॉट्स पे एट द सेम टाइम वी हैव स्टार्टेड द वर्क, और इंशाल्लाह ताला हमारा टाइम पीरियड है कि 2 साल मजीद लगेंगे, और 2 साल में ये जब पाए तकमील तक पहुंच जाएगा तो जो अभी आवाम को तकलीफ हो रही है डेफिनेटली वो बाद में आवाम को वो और मजीद सहूलत, उनकी आइंदा नस्लों के लिए सहूलत सामने आएगी।
पहिरों त मां तव्हांखे इन ॻाल्हि खे क्लियर कयां, जेलनि जी हालत बिल्कुलु सही आहे, कोई ख़राबु हालत न आहे। हा, जेसि ताईं तव्हां चयो आहे कुझु जेलनि में गुंजाइश खां वधीक कैदी आहिनि, ऐं हीअ जेको फिगर तव्हां ॾियो था हेपेटाइटिस एड्स जो फिगर, अलाए तव्हां किथां वरितो आहे, अहिड़ी का फिगर न आहे जेलनि में। जेके ॿार जेलनि में आहिनि उहे केतिरे सालनि ताईं इन्हनि सां इमिग्रेट सां रही सघनि था पिया, ऐं उन खां अलावा इनमें को शक न आहे जेलनि जी हालत बहितर थी आहे तव्हां ॾिसण खां पोइ। खाधे पीते जूं कुझु शिकायत अचनि थियूं कुझु डिस्ट्रिक्ट्स में, उनखे कीअं तव्हां? मां इन ॻाल्हि दावा सां थो चवां कि जेके सिंध जे जेलनि जहिड़ो खाधो, मैं दावा से कहता हूँ कि जो खाना सिंध के जेलों में कैदियों को मिलता है वो कहीं भी किसी भी सूबे के साथ आप कंपेयर करें कि उनसे बहुत बेहतर खाना मिलता है कैदियों को, क्योंकि वही खाना कैदी भी खाते हैं और जो हमारे स्टाफ के लोग हैं वो भी वही खाना खाते हैं। तो बिल्कुल उनके खानों की अगर कोई शिकायत है तो आप मुझे। ये कराची की सियासत में जो है अहम तब्दीली आ रही है कराची की सियासत में, उस हवाले से क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? इमरान खान तो फजूल है, लेकिन कराची की सियासत में कराची में मकानी बगायती इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं? कहते हैं कि होने चाहिए। देखिए जी, पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन टाइम पर हो, ठीक है, और हमेशा हम इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। जहाँ तक आपने बात की कि जी कराची में कोई नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, हमें और मजा आएगा कंपटीशन करने में। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, जितनी पार्टियों ने जमा होना है जमा हो जाए, हम उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से मजा आएगा, किसी को शिकस्त नहीं। लीगल इमिग्रेंट्स की आपने 2-3 मुल्कों के नाम लिए, मसला ये नहीं है दूसरे मुल्क से 150 लोग होंगे, अफगान पनाहगज़ीन यहाँ 20 से 30 लाख हैं, कोई 2-400 या 2-4 हज़ार नहीं है। इसके लिए और अच्छा 18वीं तरमीम के बाद आपको ये राइट भी हासिल है कि आप कोई कानून बना के उनको रोकें, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा आपको बाउंड नहीं करेगा आपके आप इन 30 लाख लोगों को यहाँ पे रखें। इसके लिए आप कई बार सवाल करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, आज भी आपने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया है अफगान पनाहगज़ीन के बारे में। देखिए मैं अर्ज करूं जमाली साहब, वाज़ेह मौक़िफ़ क्या होगा कि जो इलीगल इमिग्रेंट सिंध हुकूमत को या फेडरल गवर्नमेंट को नजर आता है उसको गिरफ्तार किया जाता है कानून के दायरे में रहकर और उसको डिपोर्ट किया जाता है। और वाज़ेह मौक़िफ़ क्या करे? अब जरा आप अगर चाहते हैं कि एक दिन पे 30 लाख लोग गिरफ्तार हो जाए, तो 30 लाख लोग एक दिन में, तो ना मेरे पास उनके नंबर्स हैं और ना 30 लाख की फोर्स है हमारे पास कि एक दिन में 30 लाख लोगों को गिरफ्तार करे। डेफिनेटली यही इसी तरीके से होता है कि जब भी हमारे जो इदारे हैं वो जब उनको इस तरह की निशानदेही होती है, कोई इलीगल इमिग्रेंट रह रहा है यहाँ पे, तो उसको गिरफ्तार करके वो अदालतों में लेके जाते हैं, अदालत उनको जेल में भेजती है, जेल के बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है। जो कानून का तरीक़ाकार है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, कोई नया तरीका हम हम बना नहीं सकते। तो हमारी पॉलिसी में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। आवर पॉलिसी इज वेरी क्लियर कि whoever is illegally living in Sindh, तो इट इज आवर ड्यूटी तो उसको हम जो है कानून के दायरे में रह के जो कार्रवाई उसको करें। इसी से रिलेटेड है, आप नहीं समझते हैं, आप इसी से रिलेटेड है, जमाली के सवाल से रिलेटेड है। आप नहीं समझते हैं बड़ी तेजी से अफगान मुहाजिरीन कराची के जमीनों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, कराची की मईशत पर उनका कंट्रोल है, सिक्योरिटी इशू बढ़ रहे हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर वाकई आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फिर किस तरह जमीनें खरीद रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं, मईशत पर, तमाम कारोबार पर तकरीबन उनका कंट्रोल है, ट्रांसपोर्ट खासतौर पर, तो सिंध हुकूमत क्या कर रही है इस सवाल? देखिए जी, मैंने कहा कि कोई भी शख्स पाकिस्तानी है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, वो यहाँ कारोबार भी कर सकता है, और कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी तौर पर है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो गैर कानूनी है तो उसको जो सब गैर कानूनी के लिए लॉ है उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। देखिए जी, हमने कहा कि ये हुकूमत का काम है कि किसी को गिरफ्तार करके अदालत के पास पहुंचा देना, ठीक है, और अदालत का काम है कि अदालत किसी को रिहा करती है रिहा करे, किसी सजा देती है सजा दे। मैंने ये भी कहा कि इस लॉ में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो है 2 महीने 60 दिन। तो काफी लोग अभी इस जनवरी, जैसे आप 2 दिन के बाद जनवरी शुरू है, तो
تو जनवरी के फर्स्ट वीक में इनमें से काफी लोग रिहा हो रहे हैं और वो उनको पर जो कानूनी तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा। तो मतलब इसमें कोई सिंध हुकूमत खुदा ना खास्ता ये नहीं देख रही कि जी ये बंगाली है, ये नाइजीरियन है,